Hello students, welcome back to online sessions of Giri tutorial. Today we are going to start with the next lesson and the first topic is trade. Second lesson, that is trade. We are going to start with the introduction part. Trade play a very vital role in the economy of every country. The overall development of economy is an outcome of proper functioning of trade. Buying and selling of goods and services for money worth is fundamental feature of trade, and other is the transfer of ownership of goods and services from one person or entity to another. The original form of trade was barter, the direct exchange of goods and services. After invention and acceptance of common currency, that is money, trade became greatly simplified. ट्रेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री. The overall development of economy is an outcome of proper functioning of trade. See, buying and selling of goods and services is the basic feature characteristics of trade, and other is the transfer of ownership of goods and services from one person or entity to another. See, trade में buying and selling जो है वो trade का basic feature है, and यहाँ पे ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ट्रेड वाज बार्टर, जैसे आप सबको पता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बार्टर में गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स एक्सचेंज होता था, राइट. तो आफ्टर इन्वेंशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन करेंसी, जब करेंसी का इन्वेंशन हुआ दैट इज मनी, तो ट्रेड बिकेम वेरी सिंप्लीफाइड. बहुत ज़्यादा ट्रेड क्या हो गया, सिंपल हो गया. Now let's see the meaning of trade. Trade means the process of exchange of goods and services. Trade refers to buying and selling of goods and services with an object of earning profit. Trade establish a link between producer and consumer, and it is carried out by buyer and seller. ट्रेड इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं. इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with an object. The motive behind doing this is to earn profit. ट्रेड जो है वो एक लिंक स्टैब्लिश करता है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में, एंड इट इज कैरिड आउट बाय बायर एंड सेलर. बायर एंड सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, एंड ये एक लिंक क्रिएट करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में. ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया, trade can be divided into different types, which are as follow. Trade is divided into internal trade and external trade. Internal trade is further classified into wholesale trade and retail trade. अभी wholesale trade का मतलब क्या होता है? wholesaler जो रहता है वो एक लिंक है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर. होलसेलर जो है वो बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से परचेज करता है एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रिटेलर उसे सेल करता है. और रिटेलर इज द लास्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. वो होलसेलर और कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर के बीच में एज अ लिंक काम करता है. नाउ सी, रिटेल ट्रेड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू आइटिनेरेंट रिटेलर एंड फिक्स शॉप रिटेलर. Itinerant retailer are the one who does not have a fixed place to do their business. They do not have fixed place, and they keep moving from one place to another to sell their products. And fixed shop retailers are the one who have a fixed place to do their business. Now external trade is divided into three: import, export and report. Import means where, see, internal trade is a trade within the country, within the geographical boundary. Internal trade आपकी कंट्री में within the boundaries होता है, and external trade it is beyond the national boundary. जब आप किसी और कंट्री के साथ आप जब ट्रेड में इन्वॉल्व, किसी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हो, तो दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड. अभी एक्सटर्नल ट्रेड जो है फर्दर क्लासिफाइड है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट. इम्पोर्ट, फर्स्ट वन इज इम्पोर्ट. जब आप किसी फॉरेन कंट्री से गुड्स परचेस कर रहे हो तो यू आर इम्पोर्टर एंड दिस इज इम्पोर्ट ट्रेड. ये इम्पोर्ट ट्रेड है. एक्सपोर्ट
व्हेन यू आर सेलिंग योर गुड्स टू अनदर कंट्री, जब आप अपने गुड्स को दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हो तो ये एक्सपोर्ट ट्रेड है. Now next is entry port. It is a kind of trade where minimum 3 countries are involved. It is a combination of both import and export trade. जो entry port है वो combination है import as well as export trade का. अभी entry port में होता क्या है, वहाँ पे आप एज ए इम्पोर्टर आपने किसी कंट्री से गुड्स को इम्पोर्ट किया, देन आपने गुड्स को फर्दर प्रोसेसिंग की एंड अगेन यू हैव सोल्ड द गुड्स टू अनदर कंट्री. तो ये क्या है, एंट्री पोर्ट. सो टिल नाउ एवरीथिंग इज वेरी क्लियर. सी, ट्रेड इज क्लासिफाइड इनटू टू, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड. नो ट्रेड is buying. Trade refers to buying and selling of goods and services with the main object of earning profit. Trade is classified into two, internal trade, external trade. Internal trade वो होता है जो within national boundaries होता है, which is further classified into wholesale trade and retail trade. अभी एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज होता है, वो दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड. नाउ एक्सटर्नल ट्रेड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट. नाउ वी विल स्टार्ट विथ इंटरनल ट्रेड. When the goods and services are purchased or sold within the country, it is referred as internal trade. जैसे अभी हमारा डिस्कशन हुआ था, जो goods and services जो परचेज एंड सेल होता है, जो परचेज एंड सोल्ड होता है विद इन द नेशनल बाउंड्री, विद इन द कंट्री, इट इज रेफर्ड एज इंटरनल ट्रेड. एग्जाम्पल, परचेसिंग गुड्स फ्रॉम द डोर सेल्समैन, लोकल शॉप, एग्जीबिशन, रीजनल मार्केट, departmental store or a mall are the example of internal trade. See, it is very simple. Trade within the national boundary is internal trade. जो आपकी कंट्री में ही हो रहा है, लोकल करेंसी के यूज, लोकल करेंसी आप यूज करके जो ट्रेड होता है दैट इज इंटरनल ट्रेड. When the buyer and seller both are from the same country, it is known as internal trade. Trade between two states or cities or same country is also considered as internal trade. See, when buyer and seller both are from the same country, दोनों एक ही कंट्री को बिलोंग करते हैं, it is known as internal trade. जब ट्रेड दो सिटीज के बीच में होता है, दो स्टेट्स में होता है of the same country, it is also considered as internal trade. As there is a gap between production and consumption, there is a need to have proper channel of distribution. The channel of distribution is very important in the internal trade. Usually the producer are situated at one place, whereas the consumer are scattered over a wide area. There is a big gap between producer and consumer. अभी तो होता कैसे है, there is a gap between production and consumption. Production और consumption दोनों में गैप होता है. प्रोडक्शन एक्टिविटी समझो अभी हो रहा है तो कंजम्पशन एक्टिविटी बहुत बाद में होता है. तो ये जो गैप ब्रिज करने के लिए देयर शुड बी अ प्रॉपर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन दी इंटरनल ट्रेड. होता क्या है, प्रोड्यूसर जो है वो एक जगह पे होता है, राइट, उसका प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो एक जगह पे होता है, बट जो कंज्यूमर्स है दे आर स्कैटर्ड ओवर अ वाइड एरिया. कंज्यूमर जो है वो स्कैटर्ड है, देयर इज अ बिग गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. तो ये बहुत बड़ा गैप है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में. सो दिस गैप कैन बी शॉर्टेंड बाय चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प टू मेक प्रोडक्ट अवेलेबल at the right time, at the right place and in right quantity through different intermediaries. जो बायर है एंड जो प्रोड्यूसर है उनके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, क्योंकि यूजुअली बायर जो है वो एक जगह पे जो प्रोड्यूसर है वो एक जगह पे सिचुएटेड होता है, बट बायर जो है वो स्कैटर्ड होता है ओवर अ वाइड एरिया. तो ये जो गैप है इसको कम करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये जो गैप है वो फिल कौन करता है, इट इज शॉर्टेन बाय चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प टू मेक प्रोडक्ट अवेलेबल. इससे प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल होता है एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस एंड इन राइट क्वांटिटी
थ्रू डिफरेंट इंटरमीडियरीज। दूसरे इंटरमीडियरीज मतलब जो मिडिल मैन होते हैं, एजेंट होते हैं, इनके हेल्प से जो गुड्स है वो सही समय पे सही जगह पे क्या होता है, अवेलेबल हो पाता है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल to make the product available at the right time, right place and in right quantity through different intermediaries। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले मैन्युफैक्चरर आता है जो कि प्रोड्यूसर होता है। नेक्स्ट इज होलसेलर, द वन हु परचेज गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल इट टू द रिटेलर एज पर दिस रिक्वायरमेंट। उसके बाद रिटेलर आता है जो लिंक है होलसेलर एंड कंज्यूमर के बीच में, एंड द लास्ट वन इज कस्टमर जो अल्टीमेट कंज्यूमर है जो प्रोडक्ट परचेज करता है फॉर कंजम्पशन। नाउ इंटरनल ट्रेड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अभी होलसेलर वो होता है जो बल्क क्वांटिटी में परचेज करता है प्रोड्यूसर से एंड उसे एज पर द रिक्वायरमेंट रिटेलर को सेल करता है। तो होलसेलर जो है वो डायरेक्ट लिंक है, he act as a link between producer and retailer। now next is retailer। retailer जो है वो लिंक है होलसेलर और कस्टमर के बीच में। he is also known as second link in the chain of distribution। वो होलसेलर से गुड्स एज पर द डिमांड परचेज करता है एंड उसको एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर उसे सेल करता है। रिटेलर से दे आर यूजुअली लोकेटेड इन द लोकल एरियाज, वो आपके नियर बाय, आपके जो घर के नियर बाय एरिया में जो भी शॉप्स है वो सब रिटेलर्स है। एंड रिटेलर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड किसके साथ रहता है, कस्टमर्स के साथ रहता है। सो दिस इज द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले प्रोड्यूसर है, सेकेंड होलसेलर, उसके बाद रिटेलर है एंड लास्ट में है अल्टीमेट कंज्यूमर। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। Thank you so much.